کوئٹہ شہر میں زوردار دھماکہ، پولیس کے مطابق دھماکہ جناح روڈ کے قریب ہوا۔ جناح روڈ کے قریب دھماکے کی آواز سنی گئی۔ پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے بارڈر ٹاؤن میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ جناح روڈ کے قریب ہوا۔ پولیس کے مطابق جناح روڈ کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دھماکے کی نوعیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع کی طرف روانہ کر دی گئی ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، کوئٹہ میں جناح روڈ کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس کے لیے پولیس کی ٹیمز اور ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع کی طرف روانہ کی گئی ہیں اور ابتدائی طور پر دھماکے کی نوعیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں، کوئٹہ کے مصروف علاقے ماڈل ٹاؤن میں جناح روڈ کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ابتدائی طور پر ریسکیو ٹیمز روانہ کر دی گئیں، جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ رحمیار خان کے علاقے تھانہ ایئرپورٹ کی حدود سے دو نوجوان محمد عمیر اور سکندر علی کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ مغوی زمینوں کو پانی لگا کر واپس گھر جا رہے تھے کہ ملزمان نے روک کر اغوا کر لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق اغوا کار نوجوانوں کو صادق آباد کی طرف لے گئے، جبکہ ایک ساتھی کو کچھ فاصلے پر چھوڑ دیا گیا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود مغویوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بی اسپتال لاہور سے اغوا ہونے والی 2 دن کی معصوم بچی کو پولیس نے کامیاب کارروائی کے بعد بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے 2 دن کی معصوم بچی کے اغوا کا نوٹس دیا تھا۔ ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کی سربراہی میں بچی کی بازیابی کے لیے ٹیمز تشکیل دی گئی تھی۔ بچی کی بحفاظت بازیابی پر والدین نے پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے تاریخی دن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو سے ملاقات کے دوران غزہ میں جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی امن فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہم غزہ معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ معاہدے کو تمام عرب اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے امن معاہدہ تسلیم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فلسطینی اتھارٹی کو میں لیڈ کروں گا۔ برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر بھی اس معاہدے کا حصہ ہوں گے۔ اسرائیل اپنے مغویوں کی فوری واپسی چاہتا ہے۔ حماس کی منظوری پر تمام مغویوں کی رہائی ہوگی۔ انکار پر نتنیاہو کو میری حمایت حاصل ہوگی۔ ملاقات میں نتنیاہو نے آزاد فلسطینی ریاست کی مخالفت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کی حمایت کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ ایران سے امن معاہدے پر بھی بات چیت ہوئی۔ امید کرتا ہوں ایران ایک دن ابراہم معاہدے کا حصہ ہوگا۔ اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزراء خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت اور ان کی جانب سے غزہ کی جنگ ختم کرنے کی مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر اعتماد ظاہر کیا کہ وہ امن کی راہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سلسلے میں وزراء خارجہ نے صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے جنگ کے خاتمے، غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی عوام کے جبری انخلاء کی روک تھام اور جامع امن کی پیشرفت کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے کے الحاق کو روکنے کا عندیہ دیا ہے۔ وزراء خارجہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ امریکہ اور تمام فریقین کے ساتھ مثبت اور تعمیری انداز میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے، جس کے نتیجے میں خطے کے عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام قائم ہو۔ بیان میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایک ایسے جامع معاہدے کے لیے پرعزم ہے جو غزہ میں بلا روک ٹوک اور بھرپور انسانی امداد کی فراہمی، فلسطینیوں کے جبری انخلاء کی روک تھام، یرغمالیوں کی رہائی، سب کی سلامتی کو یقینی بنانے والا سیکیورٹی میکانزم، اسرائیلی انخلاء، غزہ کی تعمیر نو اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ایک منصفانہ امن کے قیام کی ضمانت دیتا ہو، جس کے تحت غزہ اور مغربی کنارہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست پہ ضم ہو تاکہ علاقائی استحکام اور سلامتی حاصل ہو سکے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में लिखा, सदर ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम करते हैं जिसका मकसद गजा की जंग को खत्म करना है। फलस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि उन्हें मुकम्मल यकीन है कि सदर ट्रंप इस निहायत अहम और फौरी मुआहदे की हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सदर ट्रंप की क़यादत और इस जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टीव वेटकोफ के किरदार को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि खित्ते में देरपा अमन के क़याम के लिए 2 रियासती फार्मूले पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत के गर्विदा हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतादिद मरतबा पाकिस्तान का जिक्र। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने मेरे अमन मंसूबे की मुकम्मल हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे 20 निकाती मुआहदे का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन मुआहदे से इत्तेफाक किया। तुर्क और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। गजा के मुस्तकबिल के लिए अमरीका इलाकाई शराकतदारों और आलमी बरादरी की हिमायत से 20 निकाती रोड मैप पेश। मनसूबे के तहत गजा को दहशतगर्दी से पाक गैर अस्करी जोन बनाया जाएगा और इसराइल कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा। जंगबंदी के बाद इसराइली फौज का तदरीजी इनखला और मुआहदे के 48 घंटों में तमाम यरगमालियों की वापसी होगी। इसराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदी और हजारों गिरफ्तार गजा बाशिंदे रिहा करेगा। पुरअमन बकाए बाहमी के लिए हमास सरकार को आम मुआफी और महफूज रास्ता दिया जाएगा। मुआहदे के बाद रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। इमदाद की तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर करेंगे। आरजी इंतजामिया फलस्तीनी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी जिसकी निगरानी अमरीकी क़यादत में बैनुल अक़वामी कमेटी करेगी। मुआशी बहाली के लिए खुसूसी इकनॉमिक जोन और रोजगार के मंसूबे, जबकि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा शुरू किया जाएगा। तामीर नौ और इस्लाहात के बाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार और सियासी मुकालमा मुमकिन होगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा 20 निकाती अमन मंसूबे पर हमास का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में हमास रहनुमा महमूद मरदावी का कहना था कि उन्हें अभी तक तहरीरी मुसव्वदा मौसूल नहीं हुआ था। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुसव्वदा मिलने के बाद क़यादत मुशावरत करेगी और फिर कोई फैसला सामने आएगा। हमास रहनुमा ने याद दिलाया कि दोहा में उस वक्त इसराइली हमला किया गया जब क़यादत अमरीकी तजवीज़ पर गौर के लिए जमा थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म से दोहा हमले पर मुआफ़ी मांग ली। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी को कॉल की। ज़राए के मुताबिक पहले अमरीकी सदर ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म से बात की, फिर नेतन्याहू की बात करवाई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत कई मिनट तक जारी रही। नेतन्याहू ने कतर की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भी माजरत की। इम्कान है कि इसराइल हमले में शहीद कतरी सिक्योरिटी गार्ड के अहल खाना को मुआवजा भी अदा करेगा। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान कतर का एक वफ्द भी व्हाइट हाउस में मौजूद था। इसराइल ने 9 सितंबर के हमले में हमास मुज़ाकराती वफ्द को उस वक्त निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी जब वो अमरीकी सदर ट्रंप की गजा जंगबंदी से मुतालिक तजावीज़ पर गौर कर रहा था। हमले में हमास क़यादत महफूज रही थी, ताहम मुज़ाकराती वफ्द के सरबरा खलील अल हैया के बेटे और मैनेजर समेत 5 फलस्तीनी और एक कतरी सिक्योरिटी अफसर शहीद हो गया था। कतर ने इसराइल की जानिब से मुआफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात में अपना सालसी किरदार मुअत्तल कर दिया था। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई के बायस पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवीद कमर ने कहा है कि मुल्क इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से गुजर रहा है और उनके हल्के में मीडियम लेवल सैलाब की वजह से अवाम शदीद परेशान है। उन्होंने कहा कि आइंदा फसलें भी पानी की वजह से बुरी तरह मुतासर होंगी और ये सूरत हाल मुल्क की लीडरशिप के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नवीद कमर ने कहा कि तकरीरें तो सब कर सकते हैं लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी मुतासरा आवाम की देखभाल है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध और पंजाब के पानी के मामलात को सियासी रंग देने की बजाय पूरे मुल्क को मद्देनजर रखना चाहिए। नवीद कमर ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी किसी वजारत या कुर्सी की ख्वाह नहीं बल्कि इज्जत से बैठकर मसाइल हल करना चाहती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो वह माजरत खा हैं और अपोजिशन के एहतजाज को घर के अंदर बैठ कर हल किया जाएगा। इस दौरान पीटीआई अरकान ने नारेबाजी की और शमा जुनेजो का तज़किरा भी किया। कौमी असम्बली का इजलास 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है, जबकि इजलास खत्म होने के बाद पीटीआई के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमीन पर बैठ गए और अपनी असम्बली लगा ली।
क्वेटा पशीन स्टॉप के करीब होने वाले धमाके में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 19 जख्मी हो गए। लोकल बस और रिक्शा धमाके की जद में आए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवादवा थी कि अचानक धमाका हो गया। धमाके के बाद एफसी ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लोकल बस और रिक्शा धमाके की जद में आए हैं। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। क्वेटा धमाके के मुतालिक आपको अपडेट करें, एफसी ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया है और पशीन स्टॉप के करीब यह धमाका हुआ है। 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 19 जख्मी हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफा बुज़दार से। जी मुस्तफा, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर का मसरूफ तरीन इलाका है, मॉडल टाउन के करीब, पशीन स्टॉप के करीब, जहाँ पे सरकारी मौजूद है, वहाँ पे एक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में वहाँ से धुआं शुरू हो गया था। इतना तेज जी मुस्तफा बुज़दार, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहे, कोशिश करते हैं दोबारा रब्ता करने की। आपको बताते चलें, क्वेटा पशीन स्टॉप के करीब धमाका हुआ है। 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 16 जख्मी हुए हैं। लोकल बस और रिक्शा भी धमाके की जद में आए हैं। पशीन स्टॉप जो कि क्वेटा का मसरूफ तरीन इलाका है, वहां पर यह धमाका हुआ है। एफसी ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया है। इब्तदाई तौर पर धमाके की नौयत भी मालूम की जा रही है। आपको बताते चलें, क्वेटा में ये धमाका हुआ है जो कि पशीन स्टॉप पे हुआ। पशीन स्टॉप क्वेटा का मसरूफ तरीन इलाका है जहां पर यह धमाका हुआ है। लोकल रिक्शा अभी उसकी जद में आया, एक गाड़ी भी जद में आई है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 19 अफराद जख्मी हुए हैं। क्वेटा पशीन स्टॉप के करीब यह धमाका हुआ है। रब्ता बहाल हुआ है ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफा बुज़दार से। जी मुस्तफा बुज़दार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? मुस्तफा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जैसे ही राब्ता मजीद बहाल होगा, मजीद अपडेट से भी आपको आगाह करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि क्वेटा में यह धमाका हुआ पशीन स्टॉप में, जो कि क्वेटा का मसरूफ इलाका करार दिया जाता है। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि धमाके की जद में एक गाड़ी और लोकल रिक्शा आया है, जबकि फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर इब्तदाई तौर पर धमाके की नौयत के हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। रेस्क्यू टीमें मौका पर मौजूद हैं और अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 6 अफराद अब तक जाँ बहक हुए हैं, 16 अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। एफसी ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में लेकर इब्तदाई तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आपको बताएं, क्वेटा का मसरूफ इलाका पशीन स्टॉप, जहां पर यह धमाका हुआ और धमाके की जद में एक लोकल बस और रिक्शा भी आया है, जिसके नतीजे में अब तक के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 16 अफराद जख्मी हुए हैं। क्वेटा से आपको अपडेट कर रहे हैं। क्वेटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत पशीन स्टॉप, जो कि क्वेटा का मसरूफ इलाका है, वहां पर यह धमाका हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ दायर हतक इज्जत के दावे पर अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हतक इज्जत के कानून में हालिया तरमीम के बाद हाई कोर्ट को इस दावे की समाअत का इख्तियार हासिल नहीं रहा। बानी पीटीआई की जानिब से मोहम्मद हुसैन चोटिया एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए कानून के मुताबिक हतक इज्जत के दावे की समाअत का इख्तियार सेशन अदालत को हासिल है, लिहाजा मौजूदा दावा हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस दौरान समाअत अदालत ने गुज़िश्ता रोज का हुक्मनामा पढ़ा, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने की मुखालिफत, कहा कि एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिशारत राजा से। जी बिशारत राजा, बताइएगा इस फैसले के हवाले से क्या मजीद तफसीलात सामने आई? बिशारत राजा, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी बिशारत राजा, आगाह कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस जहांगीरी के मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी, ये जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का जो फैसला दिया था, उसे आईनी बेंच ने कलअदम करार दिया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस फैसले से इत्तेफाक नहीं किया है।
जब केस की समाअत शुरू हुई तो मंसूर अवान जो जनरल पाकिस्तान है, उन्होंने बताया कि एक जज को अबूरी आर्डर के लिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तो दरख्वास्त दिलाते मियां दाऊद एडवोकेट उनसे पूछा कि आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि मेरी भी यही राय है कि जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। फैसला है कि इसके बाद ये हुआ कि ये कहा गया कि लिखा गया कि रेट काबिल समाअत है। मुनीर मलिक ने अपने दलाल में बताया, मेरी राय में एक जज के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकता है। मलिक असद अली केस में ये नहीं कहा गया कि हाई कोर्ट का रिट काबिल समाअत है। ये तासर नहीं जाना चाहिए कि हमने तस्लीम किया कि हाई कोर्ट में रिट हो सकती है। ये मुनीर मलिक जो जस्टिस जहांगीरी के वकील थे, उन्होंने अपने दलाइल में ये बताया, हमने आर्डर में सिर्फ वो लिखा है जो मलिक असद अली केस की लैंग्वेज है। जैसे अमीनुद्दीन खान ने ये कहा, जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा कि हमने फैसले में ये होल्ड किया हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही एक जज को हटा सकती है। हम रिट ऑफ को वारंटों के काबिल समाअत होने के सवालात को छू नहीं रहे। ये जस्टिस मोहम्मद अली बदर का कहना था। पर 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को काला दम करार दिया और इस तरह जस्टिस तारिक जहांगीरी को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया बिशारत राजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। पुलिस एहलकार शकील भट्ट को धमकियां देने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी ने अबूरी जमानत का फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट लाहौर ने अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया। थाना अचरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पुलिस एहलकार शकील भट्ट को धमकियां। लाहौर सेशन कोर्ट ने अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। साजिदा अहमद चौधरी ने अबूरी जमानत का यह फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज, जबकि थाना अचरा पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला जारी किया गया। पुलिस एहलकार शकील भट्ट को धमकियां देने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितरत हिंदुस्तान के खुदकुश हमले में खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 FC एहलकार जख्मी हुए। हमलावर FC वर्दी में मलबूस था और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौका पर मौजूद तमाम शरपसंदों को फौरी कार्रवाई में ख़त्म कर दिया। इब्तदाई रिस्पांस टीम्स जाए वक़वा पर मौजूद हैं और तफ्तीश और इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुक्काम का कहना है कि भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, खुदकुश हमले में खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मौके में मारे गए। 2 FC एहलकार जख्मी हुए, उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। हमलावर FC वर्दी में मलबूस था। फोर्सेज ने फौरी जवाब दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौका पर मौजूद तमाम शरपसंद खत्म कर दिए हैं।